میں موجود ہوں یہاں پہ آرزو کے والدین کے ساتھ، پیسہ غزالہ کے ساتھ، نذیر بھائی کے ساتھ۔ آج یہ کیس جو ہے ہائی کورٹ نے اپنی حد تک جو آرزو راجہ کا کیس ہے یہ ڈسپوز آف کر دیا ہے۔ یہ اس کیس کے اندر جو آپ کو پتہ ہے پرائمریلی یہ جو کیس تھا یہ فائل کیا ہوا تھا اظہر کی جانب سے، آرزو کو آگے سے ایک اپنا چھلاوا دکھا کے کہ یہ بچی کی طرف سے کیس ہے، ایک یہ ڈرامہ کر کے، مگر دراصل یہ کیس تھا اظہر کی جانب سے جس نے اس بچی کو اغوا کیا تھا، اس سے شادی کی تھی۔ وہ تین باتیں لے کے آئے تھے۔ پہلا کہ جی بچی کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے، دوسرا کہ بچی کی کسٹڈی میرے پاس رہنی چاہیے چونکہ میں اس کا میاں ہوں، تیسرا کہ اس ایف آئی آر کو ختم کر دیں۔ عدالت نے آج یہ تینوں چیزیں ڈینائی کر دیں، نہ بچی اظہر کے ساتھ گئی، نہ ایف آئی آر ختم ہوئی اور نہ اس نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے اس پوائنٹ کے اوپر آ کے اپنے سامنے جو پروسیڈنگز تھیں وہ ڈسپوز آف کر دی ہیں۔ اس حد تک یہ کیس ہائی کورٹ کے سامنے، محترم سندھ ہائی کورٹ کے سامنے ختم ہو گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے چونکہ دوبارہ آرزو سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو اس پہ آرزو نے کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اس پہ ہمیں کوئی سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے، چونکہ جو انسان ایک چھوٹی 13 سال کی بچی کو یہ پٹی پڑھا سکتا ہے کہ تم اور میں بیٹا شادی کر سکتے ہیں، تم اور میں پوری ازواجی زندگی قائم کر سکتے ہیں، تم میرے ساتھ پورے وہ رشتے جو ایک میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ قائم کر سکتی ہو، اپنی والدین کا گھر چھوڑ کے آ سکتی ہو، اس کو یہ پٹی پڑھانا کہ تمہارے والدین تمہارے دشمن ہیں، تمہارا بھلا نہیں چاہتے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو عدالت نے یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ بچی ابھی پورے دل سے راضی نہیں ہے والدین کے ساتھ جانے کے لیے، تو عدالت نے اسے کہا ہے کہ اس کو دوبارہ شیلٹر ہوم لے کے جائیں، اور ابھی اسی جب تک یہ 18 کی ہوتی ہے یہ تب تک شیلٹر ہوم میں رہ سکتی ہے، اور اس دوران بچی اس وقت کو استعمال کرے نظر ثانی کرنے کے لیے اپنے اس فیصلے کے اوپر کہ اس نے والدین کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا، اور ساتھ ساتھ ہوم سیکرٹری سندھ کو یہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ایک بندہ خاص آرزو کے لیے تعینات کریں جو ہفتے میں کم سے کم 1 گھنٹہ اس سے روز ملاقات، ایک ہفتہ میں 1 گھنٹہ ملاقات کرے گا، اس کی سکولنگ، اس کی ہیلتھ، اس کی باقی تمام چیزوں کا خیال رکھے گا۔ اور جو عدالت نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ نظر ثانی کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں یہ ایک فیسلٹی ہے کہ ہم بطور والدین جو ہیں دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کر کے جو ایک سمپل کسٹڈی میٹر ہوتا ہے، دیکھیے اس میں جو کنٹروورسیز تھیں، چھوٹی بچی کا گھر سے جانا، اس کا نکاح کروانا، اس کا ایک نیا رشتہ قائم کرنا، اس تمام کنٹروورسی کو کورٹ نے دفن کر دیا ہے، اور اب صرف اور صرف یہ معاملہ رہ گیا ہے کہ ایک چھوٹی بچی کے اپنی مرضی سے والدین سے جدا رہ سکتی ہے یا قانونی طور پہ والدین کے پاس ہی کسٹڈی لینی چاہیے، جس کے اندر یہ بھی فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ بچی جو ہے کسی دباؤ میں یہ کہہ رہی ہے کہ والدین کے ساتھ ہی جانا، یا ڈیسیٹ جو قانون میں کہا جاتا ہے کسی دھوکے میں آ کے یہ بات کر رہی ہے، یا وہ واقعی میں کوئی والدین کے سامنے کوئی شکایت رکھتی ہے، چونکہ ابھی تک کسی بھی فورم کے اوپر ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کہ ان والدینوں نے اپنی بچی پہ کسی قسم کا تشدد کیا ہو، کوئی مار پیٹ کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بٹ یقینی طور پہ وہ بچی اس وقت اثر میں ہے ان ملزموں کے۔ تو اب ہم کسٹڈی کے لیے جو ہے ہائی کورٹ کے اندر بچی کا جو بیٹل ہے وہ کسٹڈی کے لیے ہم لڑیں گے۔ جہاں تک ٹرائل کورٹس کے معاملات ہیں، یہ میں آج آپ کو علم کرنا بتانا چاہوں کہ آج جو چلان پیش ہوا اس میں گرفتاری کی جو دفعہ تھی وہ نکال دی، گرفتاری کہہ رہا ہوں، جو کہ کڈنیپنگ کی دفعہ تھی وہ نکال دی گئی ہے، اس بیسس پہ کہ بچی کہہ رہی کہ جی میں اپنی خوشی سے گئی تھی، مگر ہمارا موقف یہ کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے ایجوکیٹ کریں گے کہ آئی او صاحب کو قانون پڑھنے اور سمجھنے میں یہاں پہ تھوڑی غلطی ہوئی ہے، دفعہ جو اس کی کڈنیپنگ کے حوالے سے وہ رہنی چاہیے، چائلڈ میرج قانون کے حوالے سے جو سیکشنز تھے وہ بھی ہیں، ساتھ میں آج پولیس نے 375(5) یعنی کہ 375 PPC تعزیر پاکستان کا سب سیکشن 5، جو کہ جب 16 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے جس کے اندر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، وہ دفعہ آج ایڈ کر دی ہے۔ یہ کیس اب اس نوعیت کے حوالے سے یا ٹرائل کورٹ کے حوالے سے یا پروسیکیوشن کے حوالے سے سنجیدہ ہو گیا ہے کہ جو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس حوالے سے اس میں دفعہ اور شک ایڈ ہو چکی ہے۔ ٹرائل کورٹ کا بیٹل ہم ٹرائل کورٹ میں لے کے چلیں گے۔ اب صرف جو کسٹڈی کی کنٹروورسی رہ گئی ہے کہ بچی انشاءاللہ والدین کے پاس جلد واپس آ جائے، وہ ہم نے کرنی ہے۔ ہم عدالت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ملزمان کی کسی بھی درخواست کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا، ساری ان کی ناجائز ڈیمانڈ تھیں ان کو انہوں نے رد کیا، اور بچی کی پروٹیکشن کے حوالے سے اسپیسیفکلی فوکس کیا ہے آرڈرز کے اوپر۔ اس موقع کے اوپر میں راجہ بھائی اور ریٹا بہن سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنے کسی جو بھی خیال کا اظہار کرنا چاہیں۔ جی میں شکر گزار ہوں عدالت کا کہ جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہے بچی کا جو ہمارے حق میں سارا آیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عدالت کا اور وکیل صاحب کا اور یہ باجی کا، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
उनका सबका शुक्रिया अदा करें। आप कोई और बात कहनी बहन? खुल के कहे, कोई मसला नहीं जो है। कहना चाहती हैं आप बोले। हाँ, हमारे को तनकीद भी करनी तो करें, खुल के, कोई मसला नहीं है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और अदालत की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बजू उजाला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारा साथ दिया, और जबरान भाई की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अदालतों से कि हम कस्टडी की भी जंग जीत जाएंगे। आपको ठीक है, लगता है आपको बच्ची मिल जाएगी जी, वापस? बिल्कुल, जी, हम लोग को बिल्कुल, यकीन है, हम लोग जबरान भाई के यहाँ पूरा तक खुदा भरोसा ने है। बेहतर किया है तो आगे भी खुदा बेहतरी करे। और जो लोग वकील नहीं है या वकालत के पेशे से या कानून से जुड़े हुए नहीं, उनको मैं बता दूं कि देखिए, हर पिटीशन का एक स्कोप होता है। हर पिटीशन जब किसी अदालत में जाती है तो उसके अंदर दरख्वास्त गुजार लिखता है कि जी मेरी दरख्वास्त क्या है। ये पिटीशन फाइल की गई थी मुल्जिमान की जानिब से, ये वालिदैन की पिटीशन नहीं थी। हम इसमें रिस्पोंडेंट थे, हम इसमें जवाब देने आए थे। दरख्वास्त गुजार की 3 बातें थीं: मेरे खिलाफ FIR ख़त्म की जाए, मेरी शादी जायज़ है, आरजू मेरे साथ रहेगी। ये तीनों बातें डिनाई कर दी गई, ये तीनों बातें ख़त्म कर दी गई, उनकी पिटीशन फेल हो गई। यह स्कोप था इस पिटीशन का। इस स्कोप के हवाले से अदालत हमें जितना इंसाफ दे सकती थी उसने दिया। अब बच्ची की जो कस्टडी की बात है, इस हवाले से कि बच्ची किसके साथ रहना चाहती है या शेल्टर होम में रहेगी, हम अदालत से दोबारा रुजू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक कि एक बच्ची जो कि पिछले महीने तक कैद में थी, काबू में थी उन मुल्जिमान के, अब उनसे वो ज़िंदगी भर के लिए रहा है। जिस झूठे फर्जी निकाहनामे के तहत उसने ज़िंदगी आगे गुजारनी थी, वो उससे अब बरी हो चुकी है। और जो उसके साथ दरअसल जुल्म हुआ है, चूँकि माजरत के साथ अगर शादी करनी हो तो ये मैं दोबारा रिकॉर्ड पे कहना चाहूँगा कि शरीयत के मुताबिक मुसलमान मर्द का एक गैर मुसलमान औरत अगर वो अहले किताब है यानी कि क्रिश्चन है तो शादी करना नाजायज़ नहीं है। ये इस्लाम कबूल कराने की वजह ये होती है कि 13 साल की बच्ची को सनद इस्लाम में 18 का लिख के उसे 18 का बना दिया जाए। तो 18 का बनाने के लिए सनद इस्लाम बनाई गई थी, वरना ऐसा कौन सा मजहब है जिसको आप कबूल करें और जिस सर्टिफिकेट पे लिखा है कि आपने इस्लाम कबूल किया है, कलमा पढ़ा है, उसी सर्टिफिकेट पे आप झूठ भी लिख दें कि मैं 13 की नहीं मैं 18 की हूँ। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सारे इनके नापाक इरादे थे ये नाकाम हुए हैं। बच्ची हिफाजत के साथ खास इंस्ट्रक्शंस में होम सेक्रेटरी को कि इसकी वेलफेयर के हवाले से पनाह में है। वो अगले चंद हफ्ते जो वहाँ पे रहेगी, हमें आराम से ये आसानी होगी कि बच्ची प्रोटेक्शन में है। हम सिर्फ इतनी दरख्वास्त करेंगे शेल्टर होम वालों से भी, और उनको इस हवाले से हम आज एक खत भी अरसाल करेंगे कि सिर्फ अजहर नहीं, इस केस में 8 से 10 मुल्जिमान हैं, 3 से 4 अभी भी एब्सकॉन्डिंग हैं, उनको भी ना मिलने दिया जाए बच्ची से। अदालत के अहकामात की इज्जत करते हुए कोई भी ऐसा इंसान जिसका मनफी असर हो सकता है, और गैर ज़रूरी लोग, अक्सर लोग कह रहे हैं कि जी हम कम्युनिटी से हैं, हमें या किसी NGO ने भेजा है या हम किसी रिलीजियस इदारे या तंजीम से हैं। किसी भी बच्चे से मिलने का हक अगर होता है तो या वालिदैन को होता है। क्या आपके घर में घुस के आपके बच्चे से कोई NGO आके मिल सकती है? क्या आपके घर से घुस के कोई मजहबी शख्सियत ज़बरदस्ती आके मिल सकती है? तो जब आपके घर में घुस के एक छोटे बच्चे से कोई नहीं मिल सकता तो एक शेल्टर होम में जाके भी ये काम नहीं होने चाहिए। हम इस हवाले से शेल्टर होम को भी आगाह करेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक जिम्मेदार इदारे के तहत वो ये कानून की अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। और इस दौरान हम इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि अगले पिटीशन के अंदर भी, अगले कोर्ट बैटल के अंदर भी जो है हमें फतह होगी। और हमें बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ चीज़ें मंजर आम पे आई हैं, उसके बारे में हमने अखबार में भी पढ़ा है, आर्टिकल्स आए हैं कि जब वालिदैन को बेवकूफ़ नहीं बना सके बच्ची की कस्टडी लेने में, तो कुछ लोगों ने, कुछ इदारों के NGOs के लोगों ने जाके बच्ची से डायरेक्टली रब्ता किया और उसको ये ऑफरें दी, क्योंकि बच्ची तो ऑलरेडी मुल्जिम के असर वसूख में है, कि हम तुम्हें मुल्जिम से मिला देंगे, तुम्हारी शादी बहाल कर देंगे, तुम दोनों को बाहर मुल्क से भेज देंगे, तुम बस बोलो कि तुमने वालिदैन के साथ नहीं रहना। तो हो सकता है बच्ची इस खौफ की वजह से भी या इस लालच में भी कि जी मुझे तो बताया गया है कि मेरे सारे काम हो जाएंगे, वो बच्ची ये बयान दे रही हो। तो इसलिए हम बच्ची के बयान के ऊपर या उसकी जहनी कैफियत के ऊपर इसलिए ज़्यादा कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस जज्बात का शिकार है, किस खौफ का शिकार है, उसको किस तरह का फरेब या धोखा दिया हुआ है, उस बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह सिंध हाई कोर्ट से उम्मीद करेंगे कि कस्टडी के मामले के अंदर भी वो रियायत करे और लॉ ऑफ द लैंड के तहत एक माइनर, एक कमसिन बच्चे की लॉफुल कस्टडी, उसके लॉफुल गार्डियन, नेचुरल गार्डियन, उसके वालिदैन राजा भाई और रीटा बहन को वापस उठाए। शुक्रिया। खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में सबको सलाम पहुँचे। हम खुदाए कदूस का शुक्र करते हैं, इस वक्त हम हाई कोर्ट में मौजूद है, हेयरिंग ख़त्म हुई है, ऑर्डर जारी हो चुका है। अभी आपने जबरान नासिर जो कि एडवोकेट है आरजू राजा के वालिद के, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी है। मैं ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में बता दूं एक बार फिर अपने तमाम साथियों को
कि जो पिटीशन हाई कोर्ट में की गई थी वो आरजू की तरफ से की गई थी। दर हकीकत वो आरजू को जो अगवाकार है जिसने उसके साथ ज्यादती की है अजहर, उसने करवाई थी और उसमें उनकी दरखास्त मौजूद अदालत हाई कोर्ट से ये थी कि हमारी FIR ख़त्म की जाए जो राजा ने करवाई है, यानी आरजू के वाले ने जो FIR करवाई है वो FIR ख़त्म करवाई की जाए क्योंकि हमने शादी की है और ये शादी जायज़ करार दी जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि हम दोनों मियाँ बीवी के तौर पर रह सकें। ये 3 बातें अजहर ने आरजू के ज़रिए कोर्ट के आगे रखी थी। हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के मौजूद अदालत के मौजूद जज साहिबान के कि आज अदालत खचा खच भरी हुई थी और इतनी बहस, इतनी लड़ाई, इतना हंगामा हुआ है और इतने बीच में इंटरवीनर और इतने लोग आकर ये बात कर रहे थे और जज साहब ने बार बार वकीलों से, जो दूसरे वकील थे, उनसे कहा मैं तुम पर कंटेम्प्ट लगा दूंगा, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, अभी तुम्हें जेल भेजा जाएगा। अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात सुनी है आरजू राजा के जो वालिद हैं, उनके जो एडवोकेट हैं जबरान नासर, उनकी बात सुनी और जो आरजू के वकील थे उनकी जो पिटीशन थी उनकी तीनों बातों को रद्द कर दिया और जो उन्होंने कहा था FIR ख़त्म करो, नहीं FIR ख़त्म की, शादी करार जायज़ करार दो, शादी को नाजायज़ करार दे दिया गया, अजहर को जेल भेज दिया गया और अब उस केस को ख़त्म करके अदालत ने ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि बच्ची दोबारा से इस फैसले पर गौर करे क्योंकि वो बार बार यही कह रही है मुझे अपने खाविद के पास जाना है। जज साहब ने उसे अच्छे से समझाया कि वो तुम्हारा खाविद नहीं है, वो अब तुम जिंदगी भर उसके पास नहीं रह सकती, वो उसने जुर्म किया है इस वजह से क्योंकि बच्ची अभी तक ब्रेन वॉश जो उसका किया है वो उसी दबाव के तहत है, वो अभी तक उसको अपना खाविद तस्लीम कर रही है। इस वजह से उसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उसको थेरेपी की ज़रूरत है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो कि कोर्ट ने उसको अदालत के ऑर्डर में लिख दिया गया है कि ये दोबारा नज़रसानी करे और उसको हिफाजत में दे दिया गया है शेल्टर के और ये भी कहा गया है कि सिर्फ वालिदैन मिल सकते हैं। दोबारा मैं कहूँगी अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से, जो लोग जाकर एक ऑडियो बहुत चल रही है जिसमें कुछ लोगों ने बच्ची को ये वर्गलाया, अदालत कह रही है, अदारे कह रहे हैं, पुलिस कह रही है, माँ बाप कह रहे हैं, हर बंदा कह रहा है ये शादी गैर कानूनी है और वो लोग उसे कह रहे हैं, टेलीफोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिपोर्ट हो गया है एक्सप्रेस ट्राइब्यून में और वो लोग उसे कह रहे हैं, 2 खवातीन है, उसको कह रही है वो तेरा खाविंद है, हम तुझसे उसकी बात करवाएंगे, हम तुझे उसके साथ बाहर निकाल देंगे। उसे ट्रैप किया जा रहा है। एक हम उस हालत से बच्ची को निकालने की कोशिश कर रही है और दूसरा कुछ क्रिश्चियन खवातीन वो बच्ची को ट्रैप कर रही है कि नहीं हमारे पास इख्तियारात है, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, हम तुम्हारी खाविंद के साथ बात भी करवाएंगे, तुम खाविंद के साथ दोबारा सोओगी भी। यानी उसको एक और ट्रॉमा के अंदर, एक और फ्रेम के अंदर दिया जा रहा है। मेरा हाथ जोड़कर क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऐसे तमाम लोगों से, मजहबी जो लोग भी अपना मजहबी रूप धार कर बच्ची को वर्गला रहे हैं डोनेशंस के लिए, अपने मिनिस्ट्रीज को चमकाने के लिए, खुदारा बाज आ जाएं, उस बच्ची को ही एक तरफ काउंसलिंग होने दे। ये माँ रो रो के तड़प गई है, कितने आपने उसके आंसू बहाने हैं, क्या वो किसी दिन वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। ऐसे लोग जिनकी वीडियो सामने आ रही हैं, जिनकी ऑडियो सामने आ रही, मैं हाथ जोड़ के उनसे दरख्वास्त करती हूँ और शेल्टर से भी दरख्वास्त करती हूँ कि ये छोटा केस नहीं है, इस पे मॉनिटर किया जाए कि कौन उससे बात करता है, कहाँ से लेटर लेकर आता है, क्या वकील इजाज़त देता है उसकी, क्या कोर्ट इजाज़त देती है, क्या वालिदैन इजाज़त देती हैं। अगर वालिदैन की, वकील की, कोर्ट की इजाज़त नहीं है, किसी मुलजम से उसकी बात ना करवाई जाए, किसी NGO के बंदे से उसकी बात ना करवाई जाए, कोई मजहबी लबादा ओढ़ के आता है उसकी बात ना करवाई जाए। खुदारा केस को जीतने दे ताकि ये दूसरी बच्चियों का भी भला हो जाए, इस मुल्क की बच्चियों का भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच।